Hello everyone, welcome to Software Engineering 1. I am Assistant Professor Zinkal Patel from Brofil BCA College. Welcome you all. Now today I am going to explain a new topic that is of unit number 2, and the topic name is spiral model. Now first of all, what is spiral model? Now, spiral model is one of the most important software development lifecycle model and which provides support of risk handling. ठीक है, spiral model में जो है 4 phase होते हैं. Like 4 phase is divided in different quadrant. Like first quadrant में हम planning करते हैं, फिर second में risk analysis, फिर third में development and testing, and fourth में evaluation, right? So here the most important is that this spiral model provide risk handling also. Okay, it also analyzes risk. The spiral model is a combination of iterative development process model like prototype model and sequential linear development model, that is waterfall model. ठीक है, combination of two model. Then in this spiral model, each and every phase begin with a design goals and end with client reviewing the progress. The spiral model was first mentioned by Barry Boehm in his 1986 research paper. Here, the development team in spiral model start with a small set of requirement, right? Small set of requirement gather करते हैं, then goes through each development phase for those set of requirement. Like, see here, यहाँ पे spiral क्यों रखा है? See, like फॉर एग्जाम्पल ये रिक्वायरमेंट गेदर प्लानिंग फेज में क्या होती है, रिक्वायरमेंट गेदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, फिर यहाँ पे रिस्क एनालिसिस होता है. ठीक है, पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है और डिज़ाइन प्रोटोटाइप मॉडल बनता है और मॉडल कितना रिस्की है, कौन सी डेडलाइन का ख़त्म होगा वो डिसाइड होता है. देन उसका यहाँ पे ये फेज़ में डेवलपिंग कोडिंग और टेस्टिंग होता है. देन क्लाइंट को इवोल्यूशन करने के लिए देते हैं. ठीक है, क्लाइंट अगर उसको परफेक्टली डन करता है तो हम न्यू रिक्वायरमेंट गेदर करते हैं. ठीक है, ऐसे करते करते स्मॉल मॉड्यूल डेवलप करके एट द एंड लास्ट में पूरा सॉफ्टवेयर बनता है. ठीक है, सो यहाँ पे ईच एंड एवरी फेज गोज थ्रू द डेवलपमेंट फेज फॉर those set of requirement. Okay, then the software engineering team add the functionality for additional requirement in every increasing spiral. Okay, every increasing spiral में हम requirement add करते हैं client until the application is the ready for production phase. ठीक है, spiral phase model मैंने यहाँ पे list out की है, planning, risk analysis, development and testing and evaluation. Okay, now here planning phase में क्या होगा? Here requirements are gathered from the customers and objectives are identified and analyzed at the start of every phase. Now here requirement are like business requirement specification or system requirement specifications are gathered in this planning phase. Okay, then next phase is risk analysis. Now during this risk analysis phase, all the possible solutions are evaluated for the gathering requirement, right? And from that they select the best possible solution. Then the risk associated with that solution is identified and the risks are resolved using the best possible strategy. Okay, and the end of this risk analysis, prototype is built for best possible solution. Then next होता है development and testing. In this phase the identified features are developed, it means coding होता है. Then उसको verify करते हैं, it means testing भी होता है. And at the last phase कौन सा है, evaluation. Now this phase allow the customer to evaluate the output of the project and before the project continue to the next spiral. ठीक है, जो प्रोटोटाइप क्रिएट हुआ है उसको वेरीफाई करवाते हैं कस्टमर के साथ. सो कस्टमर इवेल्युएट द सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड देयर फीडबैक और अप्रूवल. So in the end, planning for the next phase is started. Okay, clear? Now
When to use spiral methodology? Like first of all, when the project is large, ठीक है, तब हम स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल बना के एट द एंड लार्ज मॉड्यूल इंटीग्रेट, लार्ज सिस्टम इंटीग्रेट करते हैं. देन सेकंड यूज इज़ व्हेन रिलीज्ड आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रीक्वेंट. ठीक है, रिलीजेस मतलब प्रोटोटाइप्स जो है, स्मॉल मॉड्यूल्स जो है हमको तुरंत ही रिलीज़ करना होता है. देन व्हेन क्रिएशन ऑफ अ प्रोटोटाइप इज़ एप्लीकेबल, प्रोटोटाइप मॉडल थ्रू हमें फॉलो करना होता है. ठीक है, व्हेन रिस्क एंड कॉस्ट इवैल्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट. रिस्क फैक्टर और कॉस्ट फैक्टर, अगर लार्ज प्रोग्राम हो तो कॉस्ट फैक्टर इंक्लूड होता है, रिस्क फैक्टर इंक्लूड होता है, तो उसका इवैल्यूएशन भी इम्पॉर्टेंट है. एंड मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए ये स्पाइरल मॉडल यूज होता है, क्योंकि हर एक बार हम क्लाइंट से वेरीफाई करवाते हैं. ठीक है, देन जब रिक्वायरमेंट अनक्लियर हो या कॉम्प्लेक्स हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, तब हम स्पाइरल मॉडल यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है और वो एट अ टाइम क्लियर नहीं होती है. ठीक है, तो पर्टिकुलर फेज़ में वो क्लियर होती रहती है. देन चेंजेस में रिक्वायर एट एनी टाइम. ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है और रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हो, तो वो वैसे प्रोजेक्ट में ये यूज्ड होता है. एंड व्हेन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कमिटमेंट इज़ नॉट फिजिबल ड्यू टू चेंजेस इन इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़. ठीक है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट का कमिटमेंट है वो फिजिबल नहीं है, इसलिए क्लाइंट को बीच बीच में इन्वॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, इवेल्यूएशन फेज इसमें है इसलिए. Okay, now what is the advantage of this model? Like additional functionality or changes can be done at the later stage. ठीक है, जो एडिशनल फंक्शनलिटी हम ऐड करनी है, पहले हमारा पूरा सॉफ्टवेयर बन गया, फिर जो एडिशनल फंक्शनलिटी है, फीचर्स, हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं एक बार कस्टमर से वेरिफिकेशन हो जाने के बाद. देन कॉस्ट एस्टिमेशन बिकम ईजी एज द प्रोटोटाइप बिल्डिंग इज़ डन इन स्मॉल फ्रेगमेंट. ठीक है, स्मॉल प्रोटोटाइप बनते जाएंगे तो कॉस्ट एस्टिमेशन इजी रहेगा. देन कंटिन्यूअस एंड रिपीटेड डेवलपमेंट हेल्प इन द रिस्क मैनेजमेंट. रिपीटेडली हम प्रोटोटाइप क्रिएट करते जा रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट भी इजी रहेगा. फिर यहाँ पे डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा और फीचर्स जो है वो ऐड होते रहेंगे एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. एंड यहाँ पे इवेल्यूशन है तो कस्टमर इवेल्यूएट करेगा, तो कस्टमर का बीच बीच में हर एक प्रोटोटाइप जब बनेगा तब फीडबैक आएगा. ठीक है, और कस्टमर से अप्रूवल भी होता रहेगा, तो वो एडवांटेजेस है. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल? फर्स्ट वन इज़ रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग द शेड्यूल और बजट. ऐसे कस्टमर अगर बीच बीच में रिक्वायरमेंट चेंज करते रहेंगे, फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक देंगे, हम उसको करेक्ट करेंगे. ठीक है, तो शेड्यूल जो है वो डिले हो सकता है, बजट बढ़ सकता है. देन सेकंड वन इज़ इट वर्क बेस्ट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट ओनली, ऑल्सो डिमांड रिस्क असेसमेंट एक्सपर्टाइज. ठीक है, जो रिस्क को एनालिसिस करे, इसमें वैसे एक्सपर्टाइज भी चाहिए. एंड फॉर इट्स स्मूथ ऑपरेशन स्पाइरल मॉडल प्रोटोकॉल नीड टू बी फॉलो स्ट्रिक्टली. ठीक है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा. स्मॉल प्रोग्राम के लिए भी, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए भी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा. डॉक्यूमेंटेशन इज़ मोर एज इट हैज़ इंटरमीडिएट फेज़. ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का फेज़ जो है इंटरमीडिएट फेज़ है, तो डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा रहेगा. ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट पे हमें डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा. एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट बिकॉज इट माइट कॉस्ट देम अ लॉट. सो दोज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल. Clear? Here I explain spiral model. Now if you have any query regarding this, then you can tell me. Thank you.